محمد اشفاق بھائی بہت دیر سے آپ انتظار کر رہے ہیں. جی آپ کا استقبال ہے, السلام آپ اپنا علیکم. سوال پوچھ سکتے ہیں. وعلیکم السلام. جی شیخ, میرا ایک سوال ہے. ایکچولی یہ جو ہے نا سوال صرف ہے کہ ٹاپک سے ایکس ریلیٹڈ. مسلم ہاں کا جی ہے. ہاں جی جی, ایکس مسلم کا سوال ہے یہ, اور اس کے حد سے میں آپ کو پوچھ رہا تھا. جی. اس کا سوال یہ ہے کہ ایک بھولنے والا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا, وہ بھولتے تھے کچھ باتیں, ٹھیک ہے. ہلو, بولیے. ہاں بھولتے تھے. ہاں کیا پروف ہے اس کا؟ جی ہاں ایسے کچھ حدیث میں آتا ہے نا, جیسے کہ نماز کے ٹائم کتنے رکعت بھی بھول گئے تھے ایسا. تو اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ایک بھولنے والے نبی کو قرآن دے کے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ, ایسے نبی کو, تو اس کی بات کیوں مانتے ہیں جبکہ تم صحیح حدیث, جو حدیث صحیح ہوتی ہے, جو راوی ہوتا ہے نا, جو راوی بھولنے والا ہوتا ہے تو اس کی بات کو صحیح نہیں مانتے, پھر نبی کی بات کو کیسے صحیح مانتے جو نبی بھی بھولتے تھے, اور وہ راوی جو جس کی آپ حدیث صحیح نہیں مانتے وہ بھی بھولتے ہیں. تو یہ سوال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نہیں, آپ کو بھلایا گیا, اور باقاعدہ یہ تعلیم دینے کے لیے کہ اگر اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ بتانے کے لیے کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے, یہ سمجھانے کے لیے, اور پھر یہ بھی بتانے کے لیے کہ نماز میں اگر بھول چوک ہو جائے تو اس کے لیے نمونہ کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بتانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائی گئی یہ چیز. تو اس بیس پہ تو آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ کیا نام سے بولنے والا اور نہیں بولنے والا, شریعت اور نہیں شریعت, یہ بات نہیں کہہ سکتے. راوی کے بارے میں جو آپ نے بات کہی نا, راوی کے صرف کبھی کبھار بھول جانے کی وجہ سے وہ ضعیف نہیں ہوتا ہے. بھولنا تو ایک انسانی فطرت ہے. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ کوئی راوی ایک مرتبہ بھول گیا تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی, تو دنیا میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہوگی. کبھی بھول جانا یہ تو انسان کی نیچر میں ہی ہے, وہ انسان ہوگا ہی نہیں جو کبھی نہ بھولتا ہو. تو یہ اللہ کے نبی جو راوی جو ہے نا, وہ بہت زیادہ جب بھولتا ہے, اتنا بھولتا ہے کہ اس کی غلطیاں جو ہیں وہ اس کے درستگی پہ غالب آ جاتی ہیں, تب وہ ضعیف ہوتی ہے. کبھی کبھار بھولنے سے وہ روایت ضعیف نہیں ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا بھی جو ہے نا, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری عظمت کے باوجود بشر ہیں, آپ بھول سکتے ہیں, پر اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نہیں بھولیں گے. قرآن پہنچانے کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں ہوگی. کہیں اگر کوئی بھول چک ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر دے گا. وہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے, لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. قرآن مجید میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. باقی انسان کی جو بشری تقاضے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایک حد تک کے تھے, اور اللہ کے نبی اس حساب سے بھولتے تھے. اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول خدا ہیں, اور پھر یہ آپ بتاتے کہ دیکھو یہ بھول گئے, تو ہمارا دعویٰ غلط ہوتا. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک پیارا جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی معجزات والی, زید بھائی لگائیں گے وہ آیتیں آپ, ہاں سورہ بنی اسرائیل میں ہے, اللہ بشر رسولہ, کیسے وہ قرآن کی آیت ہیں, خاص طور پہ معجزات ہی سے تعلق ہے. سورہ اسراء کی آیت نمبر 93. بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی خصلتیں جو ہیں ان خصلتوں کو قرآن میں کوڈ کر کے انبیاء کی بشریت کو, ان کے انسان ہونے کو واضح کیا ہے. وَكَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ کہا. اس سے تو پہلے جس والی طرح قرآن میں جس طریقے سے انبیاء کی بشریت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا, ویسے حدیثوں میں بھی چیزیں ایسی ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان ہونے کی کلیئرٹی ملتی ہے اور وضاحت ہوتی ہے. اور اوپر 94 کون سے نمبر؟ نہیں 90 سے. ہاں 90 سے. اوکے جی بتائیے. دیکھیے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ, ہاں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. یہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ زمین سے ہمارے لیے چشمے نہ نکال دیں. او آگے بڑھائی نا زید بھائی, چشمے نکال کے, او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا, یا پھر آپ جو ہے نا آپ کے پاس باغات ہوں اور نہریں ہوں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا, یا آسمان ہمارے اوپر اس کا ٹکڑا گر پڑے. او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا, یا اللہ کو اور فرشتوں کو آپ نیچے اتار کر کے دے دو.
औ यकून लका बैतम मिन ज़ुखरुफिन, या आपका कोई सोने का घर हो, औ तरक़ा फ़िस समा, या आप आसमान में चढ़ जाओ, वलन नुअमिन लिरुक़य्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु, और हम तुम चढ़ भी जाओगे तो हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि कोई ऐसी किताब ना नाजिल कर दो जिसको हम अपनी आंखों से पढ़ें। कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। अल्लाह के रसूल को सारे जो इतराज़ात थे, मुतालबे थे, सबका एक लाइन में जवाब दे, इतना प्यारा जवाब है, कुल सुब्हान रब्बी। इनसे कह दीजिए कि मेरा रब हर ऐप से पाक है, मेरा रब सब कुछ कर सकता है। अगर मैंने रब होने का दावा किया होता और तुम मुझको ये करने के लिए कहते और मैं नहीं कर पाता तो तुम्हारा ये फिर दावा ठीक था कि मैं रब नहीं हूं, पर मैंने रब होने का दावा नहीं किया है। मेरा रब तो हर ऐप से पाक है, वो सब कुछ कर सकता है, पर मैं हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं तो बस एक बशर हूं जिसको रसूल बना के भेजा गया है। तो मुझसे तुम्हारा ये मुतालबा करना कि सोने का घर निकाल करके दिखाओ, आसमान में चढ़ करके दिखाओ, और खजूर के बागात पैदा करके दिखाओ, और इशारा करो और नहरें जारी हो जाएं, ये सब मैंने कोई खुदा होने का दावा थोड़ी किया कि तुम मुझसे ये मुतालबे कर रहे हो। हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मैं तो बस एक बशर हूं जिसको अल्लाह ने रसूल बना करके भेजा है। तो ये सारे जो मुतालबात होते थे मोजज़ात का, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने प्यारे अंदाज में एक लाइन में जवाब दे दिया है। तो अल्लाह के नबी का भूलना इस बात की अलामत है कि अल्लाह के रसूल बशर थे। अगर हमने कहा होता कि अल्लाह के रसूल खुदा है और कोई बोलता देखो भूल गए, तो फिर हमारा दावा गलत साबित होता। हमने कहा कि रसूल है, बशर है, बशरी जो तकाज़े वो अल्लाह के रसूल के साथ भी थे। देखिए, भूलने से मुतल्लिक़ भाई साहब ने जो हदीस की तरफ इशारा किया है, सही बुखारी की हदीस नंबर 401, अगर इस हदीस को आप पूरा पढ़ेंगे ना तो आपके सारे इश्कालात का उसी हदीस में जवाब 401 सही बुखारी, हाँ सही बुखारी की हदीस नंबर 401 है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में भूल गए। नमाज में भूलने के बाद सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने क्या पूछा कि या रसूलल्लाह अहदसा फी सलात शैउन, कि नमाज के बारे में कोई, यानी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल गए तो सहाबे कराम ने क्या समझा कि आप भूले नहीं है, बल्कि नमाज का तरीका चेंज किया गया, कोई नई बात नाजिल हुई है, कोई नया तरीका नबी को बताया गया है। तो आपने जब सलाम फेरा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अहदसा फी सलात शैउन, क़ाल वमा ज़ाक, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या बात है, क़ालू सल्लैत कज़ा व कज़ा, तो सहाबे किराम ने बताया कि आपने इस तरह से नमाज पढ़ी है, यानी कुछ अलग तरीके से नमाज पढ़ी है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो सजदे से किया और कहा कि इन्नहु लौ हदसा फी सलाति शैउन लनब्बअतुकुम बिही, कहा कि अगर नमाज में कोई चेंजिंग आई होती, कोई नई बात आई होगी तो मैं वो तुम्हें बता देता। ये वाज़ेह सबूत है, ये लाइन वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह का जो पैगाम है उसमें अल्लाह के नबी भूल नहीं सकते। तो अल्लाह की तरफ से जो मैसेज मिला है आपको उम्मत तक पहुंचाने में, उसको अल्लाह के नबी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अगर अल्लाह की तरफ से कोई बात आई होती तो मैं तुम्हें बता देता। फिर अल्लाह के नबी भूलने की वजह क्या बता रहे हैं, वलाकिन इन्नमा अना बशर मिस्लुकुम, लेकिन बात यह है कि मैं तुम्हारी तरह से इंसान हूँ, अनसा कमा तंसून, मैं भी तुम्हारी तरह से भूल सकता हूँ, फ़इज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी, मैं भूल जाऊं तो तुम मुझे याद दिला दिया करो। मतलब ये कि अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगाम नबी को मिला, नबी वो पैगाम उम्मत को फॉरवर्ड करेंगे, उसमें भूल का कोई इम्कान नहीं है। अब एक बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया सहाबे कराम को, आप खुद उस पर अमल कर रहे हैं, तो एक मैसेज अल्लाह का जो पहुंच चुका, एक तरीका जो राइज हो चुका, उस पर अमल करते हुए, जो तरीका पहले से कंफर्म हो चुका, ये तरीका अल्लाह ताला का ये पैगाम है, ये हुक्म है, उस पर अमल करते हुए बशरी तकाजे के मुताबिक भूल चूक हो सकती है। तो इसी हदीस में दोनों बातें हैं कि अल्लाह के नबी शरीयत के मामले में भूल नहीं सकते। अगर अल्लाह का कोई नया हुक्म आता तो अल्लाह के नबी जरूर बताते, उसमें भूल चूक नहीं हो सकती। भूल चूक कहाँ हो सकती है, बशरी तकाजे के मुताबिक। कोई चीज अदा करने में चूक हो सकती है, कोई बात जहन से निकल सकती है, वो इस वजह से क्योंकि आप इंसान भी, आप सिर्फ नबी नहीं है, इंसान है। तो इंसानी तकाजे के मुताबिक जहां भूल चूक होगी उसका शरीयत पे कोई असर नहीं होगा, उसका कुरान और हदीस पे कोई असर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कोई नई बात आ जाएगी, यानी कोई शरीयत बदल जाएगी, कोई ऐसा मसला हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। क्योंकि नबी खुद फरमा रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें सिखाया है, अगर उसके खिलाफ कभी कोई बात आ जाए बशरी तकाजे के मुताबिक तो मुझे याद दिला दिया करो। तो इसका ये मतलब नहीं कि जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने में कोई चूक हो सकती है। बारकल्लाह फीक, बहुत बेहतरीन। अशफाक भाई, उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। थोड़ा और डिटेल कर जी दीजिए। जी बताइए। जैसे कि कोई मिसाल है कि वो रावी जो कभी-कभी बोलते थे उनको ज़ईफ नहीं कहा जाता है। अच्छा, रावी से तो मतलब थोड़ा सा कुछ क्लियर कर दूं, रावी से मतलब आपको कंफ्यूजन है, आपके जहन में है कि कोई हाँ। रावी अगर भूल जाता है तो उसकी रवायत रद्द होती, ऐसा है ही नहीं। उसूल हदीस में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान अगर भूलने वाला हो तो उसकी रवायत रद्द कर दी जाए।
कोई इंसान ऐसा मिल ही नहीं सकता जो भूलने वाला ना हो दुनिया। इमाम ज़हाबी रहमुल्लाह ने कहा है मीज़ान में कि चैलेंज किया है कि एक मुहद्दिस बता दो, चाहे इमाम बुखारी हो चाहे इमाम मुस्लिम हो कोई भी हो, एक मुहद्दिस कोई बता दो जिसने तमाम अहादीस के बयान करने में कहीं उससे कोई चूक ना हुई हो, कोई गलती ना हुई हो। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई इंसान हो और उसने कहीं पर कोई गलती ना की हो, कोई खता ना की हो, कोई वहम ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हदीस में जब कहा जाता है ना कि रावी ज़ईफ है, तो इस बुनियाद पर कहा जाता है कि वो बहुत ज्यादा गलती करता है, यानी वो मुगफ्फल है, बहुत ज्यादा भूलता है। इक्का दुक्का अगर कोई भूल गया तो उसकी वजह से उसकी रवायत रद्द नहीं होती। इसलिए हदीस में देखिए दो हदीस को चेक करने के लिए दो चीजें हैं, मतलब बहुत 5 चीजें हैं लेकिन उसमें 2 चीजें बहुत है। एक तो ये है कि उसका हाफजा कैसा है, तो अगर हाफजा कमजोर है यानी वो बार बार भूलता है, जैसे मान लीजिए 80% भूल जाता है, तो उसको कहेंगे कि उसका हाफजा कमजोर है। और अगर इक्का दुक्का कोई भूल जाता है तो उस पर रावी पर जरह नहीं होती है, लेकिन अगर कहीं पता चल गया कि यहाँ ये भूला है तो उसकी बात रद्द की जाती है, उसके लिए शाज कुछ यानी क्रॉस चेकिंग होती है जिसको हम कहते हैं, और उस क्रॉस चेकिंग करते हुए अगर हदीस रद्द की जाती है तो उसको शाज बोलते हैं। तो 2 सिस्टम है चेक करने के, एक तो अगर कोई बहुत ज्यादा भूलने वाला उसकी रवायत रिजेक्ट की जाती है, लेकिन अगर कोई भूलने वाला नहीं तो उसकी रवायत रिजेक्ट नहीं की जाती है। यानी अगर कोई मतलब बहुत ज्यादा भूलने वाला है, उसका हाफजा कमजोर है, अगर कोई बहुत ज्यादा भूलने वाला नहीं है, हाफजा उसका कमजोर नहीं है, तो उसकी रवायत रद्द नहीं की जाती है, लेकिन इस पर नजर रखी जाती है कि कहीं भूल तो नहीं रहा, कहीं उसे चूक तो नहीं हो रही, तो उसके लिए शाज वाला उसूल है, यानी क्रॉस चेकिंग। आपके किफायत भाई कोई भूलने वाला तो उसकी रवायत रद्द होती, तो ऐसा उसूल हदीस में है ही नहीं है कि कोई इंसान भूल गया तो उसकी रवायत रद्द कर दी जाए। हर इंसान भूलता है, हर मुहद्दिस भूलता है, ठीक है, लेकिन जो जैसे 80% कोई बोल रहा है इसका मतलब उसका दिमाग सही नहीं, उसका हाफजा सही नहीं है, ठीक है। ये किफायत भाई, ये तो खुद उसूल हदीस में है ना, बाकायदा कैटेगरी बनाई जाती है कि तामुल ज़ब्त और खफीफुल ज़ब्त। इसका मतलब तो सीधा ही हुआ ना कि जो तामुल ज़ब्त है उसका हाफिजा बहुत ऊंचे दर्जे का है, और खफीफुल ज़ब्त जो है गोया उसका ग्रेड उससे नीचे दर्जे का है। नीचे दर्जे का हाफिजा मुकाबले में तभी होगा जब उससे कहीं चूक होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ चूक और भूल की वजह से ही ऐसा नहीं होगा कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके अलग ज़ब्ते हैं। तो खुलासा ये है कि ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं उसूल हदीस में। जज़ाकल्लाह खैर, मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन आंसर्स आए, ऐसा नहीं है। आई होप आंसर मिल गया होगा अशफाक भाई को। हाँ जी, और कोई सवाल? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक्स फॉर शुक्रिया।